Good morning student. Today I will teach you physical education unit 6 chair sit and reach test. तो उसके पहले पर्पस है to access the lower body flexibility which is important for good posture, normal gait patterns and various mobility tasks such as getting in and out of bathtub or car. Equipment required. Roller a chair with straight back approximate 44 cm high. Procedure. The participant sits on the edge of the chair kept against the wall for safety purpose. One foot should remain flat on the floor while the other leg should be extended forward with the knee in straight position. Heels should be on the floor and ankles should be bent in 90 degree. Place one hand on the top of the other with tips of the middle fingers and the same level. Instruct the participant to inhale and then as he exhale, reach forward towards the toes by bending at the hip. His back should be straight and head up. Avoid any jerk or bounce and never stretch too much. Keep the knee straight and hold the reach for 2 seconds. The distance is measured between the tip of the fingertips and the toes. If the fingertips touch the toe, then the score is 0. If they do not touch, measure the distance between the fingers and the toes, negative score. If they overlap, measure the distance, positive score. Scoring. The score is noted down to the nearest 1-2 inch or 1 centimeter as the distance reached, either a negative or positive score. The following table shows the recommended during in inches for the टेस्ट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के उद्देश्य क्या है। शरीर के निचले लचीलेपन का आकलन करने के लिए जो अच्छे आसन, सामान्य चाल पैटर्न और विभिन्न गतिशीलता कार्यों जैसे कि स्नान, टब या कार से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आवश्यक उपकरण: शासक लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची सीधी पीठ वाली कुर्सी चाहिए। प्रक्रिया: प्रतिभागी कुर्सी के किनारे पर बैठता है। सुरक्षा के लिए उसे दीवार के किनारे पर बिठाया जाता है। एक पैर फर्श पर सपाट रहना चाहिए जबकि दूसरे पैर को सीधी स्थिति में घुटने को बढ़ाया जाना चाहिए। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के साथ आगे बढ़ने चाहिए। एड़ी फर्श पर होनी चाहिए और आपका जो पीठ है वो 90 डिग्री तक झुकना चाहिए। एक हाथ को दूसरे अंग के शीर्ष पर उसी स्तर पर मध्य उंगलियों के सुझावों के साथ रखें। प्रतिभागी को सांस लेने का निर्देश दें और फिर जैसे ही वह बाहर निकलती है तो वह अपने कूल्हे पर झुककर पैर की उंगलियों की ओर आगे बढ़े। उसकी पीठ सीधी और सिर ऊपर होना चाहिए। किसी भी झटके या उछाल से बचें और कभी भी ज़्यादा खिंचाव ना लें ताकि उन्हें कोई समस्या ना आए। घुटने को सीधा रखें और 2 सेकंड के लिए अपनी पोज को वहीं पे रोकें जैसा आपने पोज बनाया है, ठीक है। उंगली की नोक और पैर की उंगलियों के बीच की दूरी को मापा जाता है। यदि उंगली की उंगलियां और पैर की उंगलियां को छूती है तो स्कोर 0 है। यदि वे स्पर्श नहीं करते हैं तो उंगलियां और पैर की उंगलियां के बीच की दूरी को मापा जाता है। यदि वे ओवरलैप करते हैं तो दूरी को मापा जाता है। स्कोरिंग: स्कोर को निकटतम 1.2 इंच या 1 सेंटीमीटर नीचे नोट किया जाता है क्योंकि दूरी ना तो नकारात्मक या सकारात्मक स्कोर तक पहुंच गई, इसलिए इसी तरीके से निम्न तालिकाओं द्वारा आयु समूह के परीक्षण के इंच में अनुशासित जो मापदंड है उनको दर्शाती है। उसके बाद हमारा आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। पर्पस: दिस टेस्ट हेल्प टू एक्सेस द अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स सच एज combing hair, putting on overhead garments, reaching for a seat belt, etc. Equipment required: a ruler. Procedure: this test is performed in a standing position. Keep one hand behind the hand and lower it down gradually over the shoulder and reach as far as possible at the middle of your back. Your palm should touch your body and the fingers should be downwards. Carry your other arm behind your back with palm facing outward and fingers facing upward and try to reach up as far as possible in order to touch or overlap the middle finger of the other hand. Fingers should be aligned. Measure the distance between the lips of the fingers. If the finger
tips touch, then the score is 0. If they do not touch, measure the distance between the fingertips, negative score. If they overlap, measure the distance, positive score. Let the participant practice twist and then 2 trials be conducted. Scoring. Record the best score out of the 2 trials to the nearest centimeter or 1.2 inch. The following table show the recommended norms in inch for this test for different age group. तो इसका मतलब ये है कि जो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है उसका उद्देश्य यह होता है कि यह परीक्षण ऊपरी शरीर कंधे के लचीलेपन का आकलन करने में हमारी मदद करता है, जो किसी व्यक्ति को विभिन्न कार्यों जैसे कि बालों में कंघी करना, ओवरहेड कपड़ों पर लगना, सीट बेल्ट के लिए पहुंचना आदि के लिए आवश्यक है। यह और उपकरण आवश्यक एक शासक पुल अंगिल द प्रोसीजर। यह परीक्षण स्थायी स्थिति में किया जाता है। एक हाथ सिर के पीछे रखें और इसे धीरे धीरे और कंधे के ऊपर से नीचे लाएं और अपनी पीठ के मध्य तक जहाँ तक संभव हो पहुँचे। आपकी हथेली आपके शरीर को छूना चाहिए और उंगलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। फिर अपनी दूसरी भुजा को पीछे की ओर हथेली के साथ बाहर की ओर और उंगलियों को ऊपर की ओर रखते हुए पीछे की ओर ले जाएं और दूसरे हाथ की मध्यमा उंगली को छूने या उसे ओवरलैप करने के लिए जितना संभव हो उतना ऊपर पहुंचने की कोशिश करें। उंगलियों को संरेखित किया जाना चाहिए। उंगलियों के सुझावों के बीच की दूरी को मापें। अगर फिंगर टिप्स टच करते हैं तो स्कोर 0 है। यदि वे स्पर्श नहीं करते हैं तो उंगलियों के बीच की दूरी नकारात्मक अंक को मापें। यदि वे ओवरलैप करते हैं तो दूरी को पूर्ण करने के लिए माप ले सकारात्मक अंक। प्रतिभागी 2 बार अभ्यास करें और फिर 2 परीक्षण किए जाते हैं। स्कोरिंग 2 परीक्षणों में से निकटतम सेंटीमीटर या 1.2 इंच के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर रिकॉर्ड करें। निम्न तालिका विभिन्न आयु समूहों के लिए इस परीक्षण के लिए अनुशंसित मानदंड इंच में दिखाती है। उसके बाद है आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। This test is conducted to assess coordination and agility in aged people. Purpose: this test helps to evaluate speed, agility, and balance of a person while moving. These are important factors in performing jobs which requires quick maneuvering, such as getting off a bus in time to answer the phone, etc. Equipment required: a chair with straight back about 44 cm high, a stopwatch, cone marker, measuring tape, and an area without any hindrances. Procedure: keep a chair next to the wall and place the cone marker 8 feet away in front of the chair. The participant in initially completely seated, hands resting on the knees and feet flat on the ground. On the command go, stopwatch is switched and the participant stands and walks, no running at all, as quickly as possible toward the cone, turns around and returns to the chair to sit down. Time is noted as he sits down on the chair. 2 trials are given per participant. Scoring: the best trial is recorded to the nearest 1/10 second. The table recommended norms or range in second for this test for different age group. तो इसका मतलब यह है जो हमारा 8 फुट अप और गो टेस्ट है, यह परीक्षण वृद्ध लोगों के समन्वय और चपलता का आकलन करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य: यह परीक्षण गति करते समय किसी व्यक्ति की गति, चपलता और संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए करा जाता है। यह कार्य करने में महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके लिए त्वरित पैंतरेबाजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि समय पर बस से उतरना, फ़ोन का जवाब देने के लिए यदि उपकरण आवश्यक, एक कुर्सी सीधे पीठ वाली 44 सेंटीमीटर ऊंची, एक स्टॉपवॉच, शंकु मार्कर मापने के लिए, मार्कर मतलब एक मापने के लिए, टेप और बिना किसी बाधा के एक क्षेत्र, मतलब एक सीधा सी जगह जैसे ग्राउंड, बिना किसी मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, ऐसा ना हो कोई रुकावट है, एक सीधा सा हमें एक अपना क्षेत्र चाहिए। दीवार के बगल में एक कुर्सी रखें और मार्कर को कुर्सी के सामने 8 फीट तक की दूरी बनाएं। प्रतिभागी शुरू से पूरी तरह से बैठा होना चाहिए।
घुटने, घुटनों और पैरों के तलवे ज़मीन पर टिकने चाहिए। कमांड गो पर स्टॉपवॉच स्विच किया जाता है और प्रतिभागी खड़ा होता है और चलता है। बिल्कुल नहीं चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके शंकु की ओर चारों ओर मुड़ता है और कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। जब वह कुर्सी पर बैठता है तो समय का मतलब मूल्यांकन किया जाता है कि कितने टाइम में वो वापस बैठा। प्रतिभागी 2 परीक्षण 8 फुट और गो टेस्ट दिए जाते हैं। स्कोरिंग सबसे अच्छा परीक्षण निकटतम 20 सेकंड के लिए दर्ज किया जाता है। तालिका विभिन्न आयु समूह के लिए इस परीक्षण के लिए सेकंड में अनुशंसित मापदंड जो होते हैं, सीमा होती है, उसको दिखाई जाती है।